So good evening, everyone. Yesterday we had started the chapter on algebraic expression, and in this class, I will be continuing on this. In this chapter, I will continue the discussion of this chapter. So let us proceed ahead. We started our chapter with the term that was called as the literal, that was called as the literal are the number, literal are the alphabets which are used to represent the numbers. You can say that literals are also the symbols which are used to represent the numbers, and they have all the properties of the number. They can be added, they can be subtracted. Like this they can be done. For example, if I have multiplied, if I have multiplied a with 3, if I have multiplied x with 3, then I will write it as 3x. If I have multiplied x with 3, I will write it as 3x. If I have multiplied a for say 15 times, I will write this as a raised to the power 15. So these are called as the literals. Now in a raised to the power 15, a is called as the base and 5 is called as the exponent. We have not done the chapter on bases and exponents and powers as of now, but उसकी अभी फिलहाल यहाँ कोई ज्यादा जरूरत नहीं है. Wherever it will be, that I will tell you. But one thing I would like you to understand here, that if I am multiplying y with y two times, the result will be y square. And if I am multiplying y with 2, the result is going to be 2y. This is what you have to understand, the difference. If y is multiplied by y, then the result is y square. And if the y is multiplied by 2, the result is going to be 2y. Fine. So now let us move ahead. So we had discussed various things. We had discussed about consonant, variable, we discussed about algebraic expression, we discussed about terms, factors and coefficients. These are the things we discussed. Then we discussed about algebraic expression, monomial क्या होता है, binomial क्या होता है, trinomial, multinomial, what are these things. We discussed these things in the previous class. Then we discussed about the like and unlike terms. Sir, like term क्या होते हैं, unlike term क्या होते हैं. These are all the things we had discussed. Now coming to the degree, I told you that the highest qualification of a person is called as the degree. Similarly, the highest power of any variable in an algebraic expression is called as its degree. Now if there are two variables, as in this case, we will add the degree of both of them, and the combined degree will be equal to 4. We are not going to multiply, rather we are going to add them. मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं. So if I'm adding the two expressions, the combined degree will come out to be 4. So this is what we had already discussed till the last term. Now let us discuss about the addition and subtraction of the algebraic expressions. Sir, see, if I'm talking about the addition of the algebraic expressions, first of all, what I should do is I should write my algebraic expression in the standard form. Standard form means in the increasing or in the decreasing order of their degree. Now see, one more thing before proceeding ahead. Suppose I'm having 1 here. Now 1 has degree 0. 1 has degree 0. ये 0 कैसे आया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. फिलहाल आप इसको या तो इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लो, बट इफ यू वांट टू राइट इट, अब आपके पास सवाल ये आएगा कि सर ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखूं या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स लिखूं. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम सबसे लास्ट में लिखते हैं. We always write the constants in the end. So here the expression will be x square. If I want to write it in the standard form, it will be equal to x square plus x plus 1. That is one thing. Secondly, sir, second thing that I would like to tell you is, sir, ये fx और gx क्या है? This fx and gx are just the way of representing an algebraic expression. ये जो f
ब्रैकेट में x है, दिस ब्रैकेट में x indicates that this is an algebraic expression in which the variable is x. It can be x square, it can be x cube, but whatever it will be, it will be a term of x. अगर यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होता तो हम इसे f ऑफ y लिखते। अगर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होता तो हम इसे f ऑफ y लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है तो आई हैव रिटन इट एज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. So this is the thing. Next what we have now, if I want to now on the term, if I want to calculate it, what will be the value of fx and fx plus gx, what will be the value of fx minus gx, how I will be doing this? So for that what I have to do is, I have to simply write the expressions in the standard form. Then I will be adding the like terms. Like terms को add करने का मतलब क्या होता है सर like terms को add करने का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ देखो एक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो भाई 2x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आर द लाइक टर्म्स. क्यों लाइक टर्म्स है? क्योंकि इनका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की पावर सेम है. सो 2x स्क्वायर, यस निधि बोलिए. Sir, in one expression, two different variables are there. So we will tell that expression f into bracket what? It will be written as f of x comma y. It will be written as f of x comma y. ठीक है. There, if there are two variables, it will be written as f of x comma y. If there are three variables, it will be written as f of x comma y comma z. ठीक है. So now I want to add the two expressions. तो expressions को add कैसे करूंगा सर? अब देखो सर, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड किया. इन दोनों को मैं नंबर्स की तरह ऐड कर सकता हूँ. सो सर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर. 3x2. सिमिलरली x, यहाँ पे x है और यहाँ पे -4x है, तो x माइनस 4x आई विल राइट इट एज -3x. क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे इट इज बेसिकली 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x बोल दो, या x में से -4x को घटाया, जैसे हम लोग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे, जैसे हम लोग इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे. सो इट विल बी -3x. सिमिलरली 1 plus 3 will be equal to 4. So finally my answer will be 3x square minus 3x plus 4. This will be my answer of the given expression. So this is how the addition and the subtraction is done. Subtraction में क्या करना है? Subtraction is just, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सर सब्ट्रैक्शन क्या होता है. सब्ट्रैक्शन इज जस्ट द एडिशन ऑफ द एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स मतलब जो भी मेरा पॉलिनोमियल है उसका नेगेटिव कर दो, उसको अपने गिवन पॉलिनोमियल में लाके जोड़ दो. सो सब्ट्रैक्शन इज जस्ट द एडिशन बाय द एडिशन विद द एडिटिव इनवर्स. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू in the process of addition and subtraction. Let us solve one example. Please solve it. You don't have much of the time. You have only 30 seconds. Please solve it. Please solve it.
Sir, may I tell the answer? यस बोलिए। Sir, 5x raised to 5, 5x plus 5x raised to 4, plus 4x raised to 3, plus 4x raised to 2, plus x plus 4. ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, जैसा कि आपकी दोस्त ने बोला, एकदम सही बोला। अब मुझे यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। नाउ व्हाट आई एम हैविंग, x टू द पावर 5 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 इज नथिंग बट 5x रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट x टू द पावर 4 का यहाँ तो कोई टर्म है नहीं, so this will be equal to 5x to the power 4। फिर उसके बाद यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 3x क्यूब है, so the result will be 4x क्यूब। next I'm having यहाँ पे I'm having 4x square, then I will have x और last में मेरे पास मिलेगा 3 plus 1 which is equal to 4। so sir, this is the value of the expression। so the final value of the expression will be 5x to the power 5 plus 5x to the power 4 plus 4x cube plus 4x square plus x plus 4। This will be the final value of the expression। आगे बढ़ते हैं। Yes, बोलिए। Sir, in the answer, if the order gets changed, it's okay or it will be incorrect? See, ideally they say that you should write the answer in the standard form. So it's better if you write the answer in the standard form, either in the increasing order or in the decreasing order. You can write it in both the orders. No, there is no problem. You can write in either of the orders, but you have to write it either in the increasing order or in the decreasing order. Your examiner might deduct your half marks। अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर में नहीं लिखा है तो आपके आधे नंबर कट सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आई एम हैविंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब सर ये मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जैसे हम लोग नॉर्मल जो अपन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 22 विद से 13, 22 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करना, मैं आपको बचपन में लेके जा रहा हूँ, 22 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करना था, या सबसे पहले अगर 22 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने क्या किया, 2 3 जा 6, फिर मैंने किया 2 3 जा 6। अगर सर 22 को 13 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैं क्या करूंगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 1 are 2, so the result is 286। the result is 286। each term has to be multiplied with each term। each term has to be multiplied with each term। इसको अगर आप समझना चाहते हो, अब इसको अगर आप समझना चाहते हो और डिटेल में, तो नाउ सी 22 can be written as 20 plus 2 and 13 can be written as 10 plus 3। so what I have to do is I have to multiply each term with each term। each number has to be multiplied। each number of first number, each number of the first number has to be multiplied by each number of the second number। मतलब कहने का ये है 20 into 10 is 200 plus 2 into 10 is 20 plus 20 into 3 is 60 plus 2 into 3 is 6। finally I am getting 200 plus 80 plus 6 which is equal to 286। this is how I get the answer। so this will be equal to 286। तो ये तो हो गया सर हमारा नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब हमारा जो है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? सर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का भी मल्टीपल ऐसे ही होता है। देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो एक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको जो है हमें एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है। देखो आई विल हेल्प यू आउट इन दिस, देन if there is any other question then you will have to help me out in this। सबसे पहले मैंने क्या किया सर, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जस्ट a minute निकला हुआ है, आके लगा दीजिए।
तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू सर, सबसे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस x विथ x क्यूब, सो आई एम गेट x विथ x स्क्वायर, सो आई एम गेटिंग x क्यूब। फिर मैं क्या करूंगा, इस x को सर मैं xy से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x को जब मैंने xy से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला x स्क्वायर इंटू वाई। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने xy को x से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया, इस y स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने लिख दिया y स्क्वायर इंटू एक्स। दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लाइड, या तो डॉट लगा दो, या तो इंटू लिख दो, या तो सिंपली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, दो तीनों, बोथ द थ्री थिंग्स आर सेम। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, अब मैंने इतना कर दिया, अब मैं क्या करूंगा सर, इस y को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर हियर। इस y को जब मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला x स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। फिर जब मैं इस y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर कैसे मिला सर, x तो वैसे का वैसा ही रह गया, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इज नथिंग बट वाई क्यूब, ठीक है। y को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, y क्यूब मिला। मैंने अभी आपको बताया था कि a मल्टीप्लाइड बाई a इज a स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a इज a क्यूब, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a इज a क्यूब। तो फाइनली मुझे मिला y क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, पहले मैंने एक्स क्यूब लिखा, जो पहला टर्म था वो लिखा, फिर यहाँ पे आया मैं दूसरे टर्म के पास, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई। फिर तीसरे टर्म के पास आया, मुझे क्या मिला, एक्स वाई स्क्वायर। चौथे टर्म के पास आया, मुझे क्या मिला, एक्स वाई स्क्वायर। पांचवें टर्म के पास गया तो चौथे टर्म के पास गया तो मुझे क्या मिला, एक्स वाई स्क्वायर। पांचवें टर्म के पास गया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और आखिरी टर्म के पास गया तो मुझे मिला एक्स वाई क्यूब। सो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, माय आंसर विल बी, फाइनली माय आंसर विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, प्लस 2x स्क्वायर वाई, प्लस ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस 2xy स्क्वायर। This is what I am getting. So finally the answer that I will be getting is x cube plus y cube plus 2x square y plus 2xy square। हाँ निधि बोलिए, बोलिए निधि बोलिए। Yes, sir, can't we write the variables first, x variables together and then y variables together? y वेरिएबल एंड x वेरिएबल टुगेदर मतलब मैं समझा नहीं। Sir, first x cube plus 2x cube y plus y cube plus 2xy square. Yes, you can write it like that. You can write it like that. Don't worry. See, here the degree is 3. So no, all the terms have equal degree. तो आप आगे पीछे लिख सकते हो. They don't have any problem. They won't have any problem. ठीक है. So this is how this thing is done. Let us move further. अब सर ये तो हो गया सर। चलिए डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन की बात भी समझ में आती है। अब सर हम बात करते हैं, चलो सर अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन की बात करने से पहले मैं फिर से आपको 5वीं या 6ठी कक्षा में लेकर जाता हूँ। लेट अस गो बैक, थोड़ा पुराना पढ़ते हैं। जब 5वीं, जब 4th 5th या 6th अब पढ़ा था मुझे भी पता नहीं है, जब हमने पहली बार डिवीजन पढ़ा था तो हमने डिवीजन क्या पढ़ा था। लेट अस टेक ए वेरी सिंपल एग्जांपल एंड द एग्जांपल इज आई वांट टू डिवाइड 19 by 6। जब मैंने 19 को 6 से डिवाइड किया सर, जब मैंने 19 को 6 से डिवाइड किया सर, तो मुझे क्या मिला, 6 3 जा 18 माइनस कर दिया, मुझे यहाँ पे मिला 1। तो आई विल गेट सर, आई विल गेट 6 एज द डिवाइजर, 6 इज माई डिवाइजर, 19 is my dividend and 3 is my quotient
and sir 1 is my remainder. 96 is my divisor, 19 is my dividend, 3 is my quotient and 1 is my remainder. This is what I got. This is what I got. तो यहाँ पे एक चीज और हमने बचपन में पढ़ी थी, वो क्या पढ़ा था? वो हमने ये पढ़ा था सर कि 19 was equal to that is dividend was equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. This dividend was equal to divisor multiplied by quotient plus remainder, that is it was equal to 6 multiplied by 3 plus 1. 19 was equal to 6 multiplied by 3 plus 1. अब सर यहाँ पे देखो, this is called as the division algorithm. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, now perhaps they will ask me, sir what do you mean by algorithm? सर एल्गोरिदम का मतलब होता है, ध्यान से समझना बच्चा जो बताने जा रहा हूँ, एल्गोरिदम का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड प्रोसेस. इस दुनिया में, इस विश्व में और मे भी इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी अगर डिवीजन हो रहा होगा तो दैट प्रोसेस विल बी द सेम. This is called as division algorithm. The process will be the same. That is dividend is equal to quotient multiplied by divisor, quotient multiplied by divisor plus remainder. This will always be the same. This will always be the same. That is dividend is equal to quotient multiplied by divisor plus remainder. So this trend will always be the same, be it India, be it America, be it Burkina Faso or any other country in the world. This will be the same. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैगी बनाने का जो प्रोसेस है, मैगी इसलिए मैंने बोला क्योंकि जनरली बच्चों को मैगी बहुत पसंद होती है. तो आप लोग को मैगी पसंद है किसी को? Anybody who is a big lover of Maggi? Yes, sir. How many Yes, of sir. Sir. how many of Yes, you sir. how many of you eat your mom's head to make Maggi daily? Just raise your hand. Only Dev is raising his hand. बाकियों को मैगी पसंद नहीं है क्या? सर पसंद लेकिन एकदम ज्यादा नहीं. Sir, but not daily. Sir, not every day. Not every Okay. day. नहीं एवरीडे तो Sir, it's नहीं not खाना. too much healthy. ना in a भाई month. देखो, नहीं भाई देखो, एवरीडे तो नहीं खाना चाहिए. एंड वंस इन ए मंथ इज टू मच. आप चाहो तो आप वीक में 2 बार खा सकते हो. वैसे मैं तो नहीं खाता हूँ, पर्सनली बताऊं तो मैं नहीं खाता हूँ, बट हाँ अगर चाहो तो खा सकते हो, वीक में 2 बार खा सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा मत खाना. एनीवेज, सो the process of Maggi, the process of making Maggi is same everywhere. क्या करते हैं आप? बर्तन लो, बर्तन में पानी डालो, पानी में मैगी डालो, मैगी में अगर कुछ सब्जी वगैरह डालना है तो वो डालो, देन उसके मसाले को डालो और उसको फिर ढक दो थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए, और जब सारी चीजें हो जाए तो उसको उठाओ एंड सर्व इट हॉट एंड ईट इट. दिस इज कॉल्ड एज द एल्गोरिदम फॉर मेकिंग द मैगी. Wherever Maggi is made, be it my house, be it your house, be it somebody else's house, the process is going to be the same. This is the meaning of algorithm. This is the meaning of algorithm. Here what it is suggesting that, sir ये जो algebraic expression को divide करने का जो algorithm है, जो algebraic expression को divide करने का जो method है sir, this is going to remain same everywhere. या इंडिया में कर लो डिवाइड, या अमेरिका में कर लो डिवाइड, या अफ्रीका में कर लो जाके डिवाइड. जहां पे भी सीबीएसई सिलेबस होगा, जहां पे भी क्लास 8 होगी, वहां पे डिवीजन करने का प्रोसेस यही होगा. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डिवीजन एल्गोरिदम. ठीक है, ये हो गया भाई एल्गोरिदम का मतलब. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें 3 टाइप के डिविजन्स पढ़ने हैं. पहला मेथड है डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, division of a polynomial by a monomial, division of a polynomial by another polynomial. तो 3 टाइप की चीजें हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़नी होती है. So we will be discussing the 3 things, one out of one. Then one more thing is there, we have factor method and we have long division method. Factor method हम तब यूज करते हैं जब रिमाइंडर हमारा 0 होता है. भाई अगर मैं 18 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, आई एम गेटिंग द क्वोशिएंट एज 3 एंड आई एम गेटिंग द रिमाइंडर एज 0. सो आई से दैट 3 इज ए फैक्टर ऑफ 18.
I say that 3 is a factor of 18. अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, या अगर मैं किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहा हूं, if I am getting the remainder 0, then I will say that the second algebraic expression is the factor of first algebraic expression. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उस केस में सर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं. Dev, I had explained this in the last class. I had explained in the last class what is a polynomial and what is a monomial. I hope you were present in the last class. And if you were not present, if you don't remember, wait for the time. I will. Sir, I will see the recording only. I will see. You are still not making the notes. You're still not making the notes. That's really very bad. Anyways, now I have to do the division of a monomial by another monomial. Monomial क्या होता है सर? Monomial is a algebraic expression that has only one term. ऐसा algebraic expression सर जी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही term होता है, उसे मैं monomial बोलता हूँ. Monomial is an algebraic expression that has only one term. तो अब बात करते हैं यहाँ पे सर डिवीजन की बात करते हैं. तो जो पहला केस है, पहले केस को मैं सॉल्व करूंगा, तीसरे केस को मैं सॉल्व करूंगा, बीच वाले केस को आप सॉल्व करके मुझे बताओगे. ठीक है. पहला केस इज 15a रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5a क्यूब. ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते क्या होता है. 15a रेज़ टू द पावर 5. a रेज़ टू द पावर 5 का मतलब a is multiplied by a 5 times. A is multiplied by a 5 times. A into a multiplied by a multiplied by a. Sir, divided by 5a cube. 5 multiplied by again a is multiplied 3 times. तो ये हो गया 5a cube. अब सर मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है. I want to tell the answer. What will be the answer of this? कैसे बताऊंगा? आंसर बताने के लिए सर सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ. अब देखो सर, सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि 5 3 15 होता है, तो मैंने 15 को 5 से कट कर दिया, मुझे मिला 3. भाई 15 को मैं 5 से ही कट कर सकता हूं. 5 की जगह कोई और नंबर होता तो मैं उससे कट कर देता. 15 को मैं a से नहीं कट कर सकता. 15 को मैं a से नहीं कट कर सकता. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल एंड ए मैंगो. What you can do is you can compare 2 mangoes or you can compare 3 apples, but you cannot compare an apple and a mango. The same thing is going to happen here, my dear friend. One term is 15, another term is 5. One term is 15, another term is a. One is apple, another is mango. You cannot compare these apple and the mango. So what will happen? 15 divided by 5 is equal to a. Now I am having, there are 5 a's here, there are 3 a's here. कैंसिलेशन चालू करते हैं. सर ये a और ये वाला a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स होंगे, तो सर वो जो दोनों हैं वो कैंसिल हो जाएंगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स होंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सर a और a, ये दोनों a और a कैंसिल हो जाएंगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगे. सर ये और a, ये दोनों a भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या सर? ये वाला a बच गया और ये वाला a बच गया. इसके नीचे अब भाई हमारे सारे a तो खत्म हो चुके हैं, तो अगर मेरे सारे a खत्म हो चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट 3 multiplied by a multiplied by a, और आई कैन राइट इट एज 3a स्क्वायर. क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई कि 3a स्क्वायर कैसे आया? यस सर. Yes, sir. अब सुनो, जब 3a स्क्वायर कैसे आया समझ में आ गया, लेकिन सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है सर कि अगर मान लो मेरे पास बहुत बड़ा नंबर होता, अगर सर यहाँ पे a रेज़ टू द पावर 99 होता और यहाँ पे मान लीजिए a रेज़ टू द पावर 59 होता, तो क्या मैं a को 99 टाइम्स लिखता और फिर क्या मैं a को 59 टाइम्स लिखता? और क्या आपको लगता है मैं ऐसा करता? क्या आपको लगता है कि मैं आपको No, ऐसा sir. बोलता?
नहीं, मैं आपको ऐसा ना करने के लिए बोलता, ना ही मैं आपको बोलता कि आपको ऐसे लिखना है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ मैंने क्या किया। यहाँ पे जो मेरा आंसर आया है वो 3a² आया है। 3a स्क्वायर कैसे आया? दिस 3a स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू a रेज टू द पावर 5 माइनस 3। a रेज टू द पावर 5 माइनस 3। a रेज टू द पावर 5 माइनस 3 कैसे आया था सर? a रेज टू द पावर 5 तो न्यूमरेटर में था और a रेज टू द पावर 3 जो था वो डिनोमिनेटर में था। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक नियम मिला, और वो नियम ये मिला कि जब बेस सेम होता है, अभी मैंने आपको बताया था बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। जब बेस सेम होता है एंड व्हेन आई एम डिवाइडिंग द टू एक्सप्रेशंस, then the powers get separated. Please note it down. Please note it down. If the base is same, if the base is same and the algebraic expression and the terms are divided, if the base is same and the terms are divided, then the powers get subtracted. If the base is same and the terms are divided, then the powers get subtracted. यहाँ पे सर a रेज टू दी पावर 5 था, यहाँ पे a रेज टू दी पावर 3 था। मैंने क्या किया, a स्क्वायर कर दिया विच इज नथिंग बट a रेज टू दी पावर 5 माइनस 3। यहाँ पे सर a रेज टू दी पावर 99 है, यहाँ पे a रेज टू दी पावर 59 है। मैं जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो इट विल गिव मी a रेज टू दी पावर 40। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? क्या सभी लोगों को बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, जब यस सर है तो आगे बढ़ते हैं। सर अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थर्ड वाला भी करके बताऊंगा। प्लीज सर मुझे करने दो, प्लीज सर मुझे करने दो। थर्ड वाले को करने की कोशिश करते हैं। सर 2 को मुझे √2 से डिवाइड करना, ये तो बड़ा अजीब सा खेला है सर। बाकी तो ठीक है, एक जगह x³ है, दूसरी जगह x है, तो जो आंसर आएगा वो तो x² आएगा, वो मेरे को पता है। लेकिन सर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, ये केमिकल लोचा मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं 2 को √2 से कैसे डिवाइड कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डिवाइड? इट्स वेरी, oh my god, it's very tough. This is such a tough question. No, it's not a tough question. It's a very easy question. How? सर दो महीने पहले की बात याद करो, जब स्क्वायर चैप्टर पढ़ रहे थे, रादर जब स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था 2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय, या आई कैन से सर √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है। याद आया? कुछ याद आया? यस सर, वेरी गुड सर। तो जो √2 का स्क्वायर होता है वो होता है 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर जी, यहाँ पे इस 2 को आई विल राइट एज √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय x³ डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय x। फिर से पेन चेंज करूंगा क्योंकि मुझे कैंसिलेशन करना है, तो चेंज कर दिया। सर सबसे पहले यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा x²। यहाँ पे सर एक √2 को कैंसिल कर दीजिए तो आई विल हैव √2x²। सो द फाइनल आंसर विल बी √2x²। ठीक है। अब एक चीज और, आप लोगों को एक और बात बताई थी मैंने इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका। पहले ये बताओ, ये जो अभी तक किया ये समझ में आ गया था? ये जो अभी तक किया था ये समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड आई हैव, ये बताओ ये समझ में आ गया? बोलो यार। यस सर। लगता है खाना नहीं खाया तुम लोगों ने यार। यस सर, इतना धीरे धीरे बोल रहे हो। चलो एक और मेथड है सर, कैन आई राइट 2 एज 2 रेज टू द पावर 1? लिख सकता हूं? अरे बोलो। यस सर।
And sir, can I write square root 2 as 2 raised to the power 1 upon 2? अभी अभी पढ़ा था क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में कि सर इसको अपन 3 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 भी बोलते हैं, पढ़ा था? बोलो यार। Yes, sir. नहीं याद है? Yes, हाँ, sir. नहीं याद है, किसी को नहीं याद है कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। नंबर सब टेस्ट होगा, नंबर नहीं आएंगे फिर बताऊंगा। तो भाई ये हो गया हमारा 2 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 1, रूट 2 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 1/2। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं सर, बेस सेम है, बेस सेम है तो द पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, सो दिस विल बी 2 raised to the power 1 minus 1/2, that is equal to 2 raised to the power, this is equal to 2 raised to the power 1 minus 1/2 multiplied by this will be x raised to the power 3 minus 1, so finally I am having 2 raised to the power 1/2 multiplied by x square। या तो ऐसे कर लो या जैसे बताया था वैसे कर लो, मर्जी तुम्हारी है, सवाल का आंसर आना चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा देन ओके। चलो, नाउ द सेकेंड पार्ट इज हैज टू बी डन बाय यू, सो आई एम वेटिंग फॉर 30 seconds, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीजों को इंडिविजुअली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस विल बी 36, this will be 36 a raised to the power 3 b raised to the power 5 divided by minus 12 a raised to the power square b। so this will be 36 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3। a क्यूब को जब मैंने a स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे a मिला, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, और जब मैंने b रेज टू द पावर 5 को b से डिवाइड किया तो मुझे b रेज टू द पावर 4 मिला, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय ये जो -1 था वो रह गया, क्योंकि सर मैंने क्या किया था, 36 को 12 से डिवाइड किया था, 36 को -12 से नहीं डिवाइड किया था। अब ये तो हम जानते हैं कि a अपॉन माइनस b इज नथिंग बट -a अपॉन b, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में निगेटिव नंबर अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो आई विल राइट इट एज -3a b रेज्ड टू द पावर 4। हाँ, अब आप बोलिए आप क्या बोल रहे थे, अब आप बोलिए आप क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप आर्या? Sir, I was saying the same, that it will be -3. I know that you were saying the same, that is why I did it, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, the next part is division of a polynomial by a monomial। इसमें हमको क्या करना है, हमको हर टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड करना है। I have to divide each and every term इंडिविजुअली। कैसे सर, सब बात समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हैं आप? तो बात समझ में नहीं आई तो सुन लो, आओ समझा देता हूं। कैसे सर, कैसे इंडिविजुअली डिवाइड करना है? पहले मैं, डू आई हैव वन मोर एग्जांपल? यस, नो आई डोंट हैव वन अनदर एग्जांपल, ठीक है। तो चलो आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। मैं क्या करूंगा, मैं हर टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड करूंगा। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर मेरे पास कोई नंबर है से 100 + 200 divided by 25, so I can also write it as 100 divided by 25 plus 200 divided by 25। क्योंकि अगर यहां से देखा जाए, सिंस द बेस इज सेम, तो आई कैन ऐड देम, सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम, सो आई कैन राइट इट एज 100 + 200 divided by 25। नाउ इट विल बी इक्वल टू 4 + 8 which is equal to 12। so now it will be 4 + 8 which is equal to 12। so this is what I have done here। अब मैं इसी कंसेप्ट को यूज करूंगा मोनोमियल्स, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है?
जिनको नहीं पता है उनको एक बार फिर से बता दूं, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression that has more than three terms. That has more than three terms. If it has more than three terms, the general term is a polynomial. But if a polynomial even has, if it has three terms also, then also I can call it as polynomial, because ideally this is not the definition of a polynomial. This is a trinomial, but I can treat it as polynomial because we should focus more on understanding the concept. Division, the definition we have already done, so we should focus more on understanding the concept. तो अब क्या किया सर, देखो जरा, -4x³ -6x² प्लस 8x को जब मुझे डिवाइड करना था 2x से, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट एज -4x³ डिवाइडेड बाय 2x -6x² डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 2x. अब क्या होगा सर, x से x³ this will get divided, so it will be 3 minus 1 which is equal to 2, so this is equal to -4x². now here it will be x से x will get cancelled, so it will be -3x, या कैंसिल कर दो या इसको बोल दो, it will be 2 minus 1 which is equal to 1. next here what will be, x to the power 1 divided by x to the power 1, so 1 minus 1 will be equal to 0, लेकिन x to the power 0 is equal to 1, यहाँ पे 0 मत कर देना. यहाँ पे I will explain you this thing once more. x से x कैंसिल हो गया, 8 से 2 कैंसिल हो गया, so finally I am getting 4. So this will be my answer of the question. अब सर यहाँ पे एक बात, निधि wait, let me explain, then I will tell, then I will ask your doubt. Now what is happening here is, एक चीज थी सर, आपने तो बोला था कि जब बेस सेम होता है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं. तो सर यहाँ पे तो समझ में आता है, इट विल बी -2x², इट विल बी -2x², क्योंकि मैं -4 को 2 से डिवाइड करना भूल गया था, सो इट विल बी -2x². इसको जब मैं 6x² को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 6 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिला, और x² को जब मैंने x से डिवाइड किया तो मुझे x to the power 1 मिला, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. सर यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 को जब मैंने 2 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो मुझे 4 मिला, लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, 4 मल्टीप्लाइड बाई x to the power 0 आ रहा है. Basically it is x to the power 0. Sir, is it equal to 0? Now my question is x raised to the power 0 equal to 0? This is my No, question. sir. So my dear No, friends, sir. the answer is x to the power 0. X to the power 0 is x to the power 0 is not equal to 0. In fact, Sarji, the correct thing will be, x to the power 0 is equal to 1. x to the power 0 is equal to 1. तो सर यहाँ पे जो 8x, यहाँ पे जो 4x to the power 0 आया था, that was nothing but 4. यहाँ पे जो 4x to the power 0 आया था, that was nothing but 4. ठीक है, so this is how the things will be done. निधि आप कुछ बोल रहे थे? No, sir, I was saying that you forgot to divide -4 and 2. ठीक है, thanks निधि, thanks. The last topic that the last thing in this chapter is division of a polynomial by another polynomial. अभी तक तो हमने मोनोमियल से डिवीजन सीखा था, अब बात आती है कि पॉलिनोमियल से डिवीजन कैसे करेंगे. हाउ विल आई डिवाइड बाय ए पॉलिनोमियल, कैसे करेंगे भाई? इट इज वेरी डिफिकल्ट. Oh my God, it is very difficult. तो यहाँ डिवीजन करने के लिए हम वही यूज करेंगे जिसको हमने पढ़ा था, जिसका नाम था डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है साहब,
तो दिस इज माई डिवाइजर सर, दिस इज माई डिवाइजर एंड दिस इज माई डिविडेंड. This is my divisor and this is my dividend. Now I want to divide it. तो चलो divide करते हैं और देखते हैं what will happen. X plus 3 है यहाँ पे और ये हो जाएगा, क्या होगा, x square plus 5x plus 6. इन दोनों को डिवाइड करना है. तो अब डिवाइड कैसे करें? सबसे पहले जो मेरा डिवाइजर है, द फर्स्ट स्टेप इज, जो मेरा डिविडेंड है सर, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल में लिखेंगे. ठीक है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया. अब क्या करोगे आप? नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको हमारे डिवाइजर के सबसे हाईएस्ट पावर वाले टर्म से आप डिवाइड करेंगे. कहने का मतलब यह है कि जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज एक्स. जब आपने एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग द रिजल्ट एज एक्स. तो यहां पे आप लिखेंगे एक्स. जब आपने एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग द रिजल्ट एज एक्स. तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स. अब आप क्या करेंगे? इस एक्स प्लस 3 को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा आप उसे नीचे लिखेंगे. यही काम हम पहले भी करते थे ना. डिवीजन जब हम करते थे तो यही काम करते थे. जब 6 को 19 से डिवाइड किया था तो हमने क्या किया था? हम 3 लेकर आए थे, फिर 6 into 3 किया था तो मुझे 18 मिला था. 19 minus 18 किया था. सेम काम आई एम गोइंग टू डू हियर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिवीजन एल्गोरिथम. इट विल बी द सेम. अब हम क्या करेंगे साहब? अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर. एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर मिला. फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं इस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा सर जी 3x. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सबसे पहले पेन को चेंज करूंगा. पेन को चेंज किया, रेड पेन लेकर आया. यहाँ पे प्लस साइन है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस साइन है तो माइनस कर दो. यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस कर दो. अगर माइनस होता तो प्लस कर देते, प्लस है तो माइनस कर देंगे. अब क्या करेंगे सर? अब दोनों को माइनस करो तो सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बताइए जरा. If I do x square minus x square, 0. Thank you. और सर अगर हम 5x minus 3x करेंगे, if I will do 5x minus 3x, what will be the result? 2x. 5x minus 3x किया है. Sir, 2x. किसी ने 4x बोला था. No, sir, nobody said. No, sir, nobody said Okay. that. No, sir, That- nobody. maybe I thought somebody said 4x. तो यहाँ पे मुझे मिला 2x, 0 plus 2x और ये जो 6 था ये ऊपर से नीचे आ गया प्लस 6. अब मैं क्या करूंगा? अगेन द सेम थिंग. जो एल्जेब्रा वाला जो टर्म है, जो वेरिएबल टर्म है, उस वेरिएबल टर्म को वेरिएबल टर्म से डिवाइड कर दूंगा. उससे पहले मैं क्या करूंगा? कलर चेंज कर लूंगा. तो वेरिएबल टर्म को वेरिएबल टर्म से डिवाइड किया तो सर 2x को जब 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या, 2x को जब मैंने x से डिवाइड किया मुझे क्या मिला? 2. अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सर 2 लिख दूंगा. ठीक है. अब 2 into x is 2x and 3 into 2 is 6. दोनों को मैंने माइनस कर दिया. ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया. ये दोनों कैंसिल हो गए. 6 minus 6 कैंसिल हो गया. मुझे मिल गया 0. तो सर व्हाट आई विल से फाइनली, कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. Okay, thank you. So what I will say finally, कि when I divided this polynomial by this polynomial, the quotient was x plus 2 and the remainder was equal to 0.
द क्वोशिएंट वाज x प्लस 2 एंड द रिमाइंडर वाज इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। एक और पोर्शन है दैट इज वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? डिविडेंड वाज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस थिंग डिवीजन एल्गोरिथम वाज, सर, डिविडेंड was equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. This was my division algorithm. अब हम क्या करेंगे, इसी को जरा डिवाइड कर जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, डिविडेंड क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। डिवाइजर क्या था? डिवाइजर वाज x प्लस 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम, सर, अगर मैं x प्लस 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें अगर मैं 0 ऐड कर देता हूं तो आई शुड गेट दिस। आई शुड गेट दिस। क्यों? क्या बोलते हो? यही है ना डिवीजन एल्गोरिथम? यस सर। यही होना चाहिए, यही है डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर जी, अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x स्क्वायर। सर जी, अगर मैं 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 3x। सर जी, अगर मैं 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 2x। और सर जी, अगर मैंने लास्ट में 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 6। सो फाइनली आई एम गेटिंग x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और एक जीरो भी था, जीरो को ऐड कर दो, जीरो को ऐड कर दो, तो फाइनली आई एम गेटिंग x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हो गई भैया डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई? हो गई डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यही करना था ना। डिवीजन एल्गोरिथम यही था कि भाई माय डिविडेंड शुड बी इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जब 19 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो मुझे क्वोशिएंट मिला 3 एंड रिमाइंडर मिला 1। नाउ 19 शुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1। वही हमने यहाँ पे चेक किया, वही हमें मिल गया, खत्म हो गई कहानी। कहानी खत्म। आगे बढ़ो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई माय माउस इज नॉट वर्किंग। ओके, ठीक है भाई, ये हो गया, ये हमने कर लिया। इसके अलावा ये है कि when the dividend and the divisor are polynomial of one variable, the degree of the polynomial in the remainder is always less than the degree of the polynomial of the divisor। भाई ये क्या बोल रहे हैं? ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज बोल रहे हैं जो मैं आपको एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। भाई देखो, अगेन चौथी क्लास में चलते हैं, 4 साल पहले डिवीजन जो अपना आर्यन है वो डिवीजन नया नया सीख रहा था उस समय। तो आर्यन को बोला गया कि भाई आर्यन 19 को 6 से डिवाइड करो। ठीक है आर्यन? तो जब आर्यन 19 को 6 से डिवाइड कर रहा था तो उस समय क्या हुआ? आर्यन ने बोला, आर्यन को टेबल ठीक से याद नहीं थी, तो आर्यन ने क्या किया? 6 2 जा 12 कर दिया और यहाँ पे -12 कर दिया, यहाँ पे 7 आ गया। तो आर्यन ने बोला कि सर द रिमाइंडर इज 7 एंड द क्वोशिएंट इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 7। और अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात करूं तो द डिवीजन एल्गोरिथम इज आल्सो वेरीफाइड हियर। 2 is equal to 19 is equal to 6 into 2 plus 7. Now you tell me one thing, where is he incorrect? Is he correct or incorrect? पहले तो ये बताइए। और अगर आर्यन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो why he is incorrect? मेरा सवाल समझ में आ गया? इन्होंने जब डिवीजन किया तो इन्होंने ये किया कि 19 को, एक मिनट दी, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट। 19 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो मुझे क्वोशिएंट 2 मिला और रिमाइंडर 7 मिला। और डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई हो रहा है कि 19 is equal to 6 into 2 plus 7। नाउ टेल मी वेयर इज ही रॉन्ग?
हाँ बताइए निधि, बताइए, कुछ बताना चाहेंगे आप, बताइए। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. The remainder always should be less than the divisor. ओके। भाई निधि ने बोला कि द रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिवाइजर। आर्यन, डू यू एग्री विथ हर और यू आर सेइंग दैट ये डिवीजन करेक्ट है? इज ही नॉट इन द क्लास? आर्यन, आर यू देयर? Perhaps he's not in the class. Okay. No, he is there in the class, but Oh, sir, he is there. he is there, but he's not listening. Okay, Arya, can you please help me? Arya, can you please help me? Yes, sir. हाँ, ये जो डिवीजन आर्यन ने किया था, was it correct or it is incorrect? Sir, it is incorrect, sir. He should have multiplied it 6 with 3. Why? यहाँ पे भी तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो रहा है बेटा। Sir, but always it does not be like that. It will always be not like that. क्यों यार, एक और नंबर को देख लेते हैं। 121 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 100, माइनस किया तो मुझे 21 आया। Here it is not verified. Here it is not verified. तो भाई पहला तो रीजन है कि why my friend Aryan was wrong. That is because the division algorithm is not verified always. एक केस में वेरीफाई हो गया गलती से, बट अगले केस में जब हमने किया तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई नहीं हुआ है। इसीलिए जो हमारे कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ पे? एक मिनट। Here also it is being verified. बेटा here also it is being verified. Here also it is being verified. It will be 11 into 10, that is 110 plus 11, which is equal to 121. Here also the division algorithm is verified. See, the division algorithm will be verified always. There won't be an issue. The division algorithm will be verified always. But sir, the remainder should always be less than the divisor. हिंदी में एक लाइन की कहानी है, the remainder should always be less than the divisor. Similarly, what you should understand here, that the degree of remainder, please note it down, the degree of remainder should always be less than the degree of remainder divisor. The degree of remainder should always be less than the degree of divisor. ठीक है भाई? तो इस नोट पे I am ending this chapter. What you guys have to do is, in the next turn I will be solving some of the questions. कुछ questions करते हैं मजेदार सवाल, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम लोग मेंटल एबिलिटी का एक चैप्टर करेंगे, if the time permits. But the first priority will be solving the questions of this chapter. हाँ बोलिए। Sir,